75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையில் மட்டுமல்ல உலகத்தின் பல இடங்களிலும் இந்தியர்கள் மூலமாக இந்த சுதந்திர தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है. இன்று நம்முடைய அந்த மூவண்ண கொடி பெருமையோடும் கர்வத்தோடும் பட்டொளி வீசி பறக்கிறது. भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं. இந்தியர்களுக்கும் இந்திய நாட்டை விரும்புபவர்களுக்கும் இந்த அமிர்த கால சுதந்திர விழாவின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ऐतिहासिक दिवस है. இந்த நாள் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प, ஒரு புண்ணியமான நயனம், ஒரு புதிய பாதை, ஒரு புதிய முடிவினை நாம் எடுக்க வேண்டிய நேரம். शुभ अवसर है. அத்தகைய ஒரு நல்ல நேரம் இது. आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है. இந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் அடிமை வாழ்வு வாழ்ந்திருந்த காலத்தில் போராட்டங்களிலேயே இந்தியர்களின் வாழ்வு கழிந்தது. सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो. பல ஆண்டுகளாக நாம் இந்த அடிமை வாழ்வை எதிர்த்து போராடினோம். आहुति न दी हो. आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है. இன்று இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்ட சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், தியாகிகள் ஆகியோரை வணங்கி வாழ்த்துகின்ற நேரம். उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का, அவர்களுடைய கனவுகளை விரைவில் நிறைவேற்ற வேண்டிய हम सभी देशवासी நேரம் இது. हैं. पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இருந்தார், सावरकर के, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருந்தார், டாக்டர் பீமாராவ் அம்பேத்கர் ஜி அவர்கள் இருந்தார், வீர சாவர்கர் அவர்கள் இருந்தார். जीवन को खपा दिया. இவர்களை போன்ற பலர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நாட்டுக்காக பலியாக்கினார்கள். देश कृतज्ञ है. मंगल पांडे, तात्या टोपे, இந்த நாடு மங்கள் பாண்டே, தாந்தியா தோப்பே, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, சந்திரசேகர் ஆசாத், अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मल, இதை போன்ற எண்ணிக்கையற்ற சுதந்திர போராளிகளுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறது. अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी. இவர்கள் ஆங்கிலேயர்களின் அந்த ஆட்சியின் வேரினை அசைத்தவர்கள். यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए. ராணி லட்சுமிபாய் हो, இந்த போராட்டத்தில் பல வீராங்கனைகளும் இருந்தார்கள். ராணி லட்சுமிபாய், துர்கா பாயி, ராணி கைடிங் லியூ,
बेगम हजरत महल, பேகம் ஹசரத் மஹால், बेलून नित्यार, வெலுன் நித்யார், भारत की नारी शक्ति क्या होती இவர்கள் அனைவரும் भारत की இந்தியாவின் नारी மகளிர் சக்தி என்ன என்பதை உலகிற்கு காண்பித்தார்கள். भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है. இத்தகைய எண்ணிக்கையற்ற பெண்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் போது आजादी का இந்தியர்கள் जंग भी பெருமைப்படுகிறார்கள், लड़ते रहे. கர்வப்படுகிறார்கள். और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்த நாட்டை வளப்படுத்தியவர்கள், வலிமையாக்கியவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். सरदार वल्लभ भाई पटेल, ராஜேந்திர பிரசாத், श्यामा திரு प्रसाद வல்லபாய் मुखर्जी, பட்டேல், ஷாமா பிரசாத் लाल முகர்ஜி, बहादुर शास्त्री, லால் பகதூர் சாஸ்திரி, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम ஜெயபிரகாஷ் मनोहर लोहिया, நாராயண், ராம் மனோகர் லோகியா, आचार्य विनोबा भावे, ஆச்சாரிய வினோபா பாவே, नानाजी देशमुख, நானாஜி தேஷ்முக், सुब्रमण्यम भारती, சுப்பிரமணிய பாரதி, अनगिनत இவர்களை போன்ற எண்ணிக்கையற்ற தலைவர்கள். आज नमन करने का अवसर. அவர்களை எல்லாம் இன்று வணங்குவதற்கான நேரம். जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव சுதந்திர करना, போராட்டம் பற்றி நாம் பேசும்போது காட்டுப் பகுதிகளிலே வாழ்ந்த அந்த மலைவாதி தலைவர்களை பற்றி, மலைவாச सिद्धो மலை ஜாதி தலைவர்களை பற்றியும் நாம் பேச வேண்டும். अल्लूरी सीताराम राजू, அல்லூரி சீதாராம் ராஜு, गोविंद गुरु, கோவிந்த் குரு, अनगिनत नाम है. இவர்களை போன்று எண்ணிக்கையற்ற பெயர்கள் என் நினைவுக்கு வருகிறது. आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा. எங்கோ நெடுந்தொலைவில் இருக்கின்ற காடுகளில் உள்ள ஆதிவாசி சகோதர சகோதரத்தில் கூட சுதந்திர வேட்கையை உருவாக்கியவர்கள் இவர்கள். कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं. சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பல வடிவங்கள் இருந்தன. जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद சமூக हो, சீர்திருத்தம் அதில் ஒரு பகுதி. நாராயண குரு, சுவாமி விவேகானந்த், ரவீந்திரநாத் தாகூர் अनेक महापुरुष हिंदुस्तान போன்ற के மகா புருஷர்கள் हर काल में भारत की चेतना को जगाते रहे. இந்தியாவில் விழிப்புணர்ச்சியை, மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார்கள். अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ. அமிர்த பெருவிழா ஓராண்டு காலத்திற்கு நாம் கொண்டாடி இருக்கிறோம். 2021 தண்டி யாத்திரையை மீண்டும் நிகழ்த்தியதன் மூலம் இது தொடங்கியது. लक्षावधि कार्यक्रम किए. शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो. ஒரே உணர்வினை கொண்ட இவ்வளவு பெரிய, இத்தனை பரந்துபட்ட ஒரு விழா இந்தியாவில் கொண்டாடப்பட்டது. उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया. சுதந்திர போராட்டத்தில் நாட்டு வளர்ச்சியில் ஈடுபட்ட அனைத்து தலைவர்களையும் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. या उनको भुला दिया गया था. आज देश ने खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, மறக்கப்பட்ட, महापुरुषों को, வரலாற்றால் மறைக்கப்பட்ட அந்த வீரர்கள், தலைவர்களை பற்றி தேடி தேடி கண்டுபிடித்து நாடு அவர்களின் புகழை கொண்டாடியது. महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा. இந்த कल 14 अगस्त சுதந்திரத்தின் அமிர்த பெருவிழா காலத்தில் இந்த வீரர்களின் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை நினைவுபடுத்தும் நேரம் வந்தது. स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए उन कोटि कोटि जनों ने
बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था। मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण மூவண்ண கொடியின் பெருமையை விளக்க அவர்கள் நாட்டு மக்கள் இதனை கொண்டாடினார்கள். நாட்டின் பெருமைகளை விளக்க கொண்டாடினார்கள். प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य है, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले இந்த 75 ஆண்டுகளில் நாட்டை பலப்படுத்த வலிமைப்படுத்த போராடியவர்கள் शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, அவர்கள் அதிகாரிகளாக இருக்கலாம், ஆட்சியில் அமர்ந்த தலைவர்களாக இருக்கலாம், समाज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, மாநிலங்களில் அரசு செலுத்தியவர்களாக இருக்கலாம். 75 साल में इन सबके योगदान को भी 75 ஆண்டுகளில் இவர்களின் பங்களிப்பையும் நாம் நினைவு கூற வேண்டும். कोटि कोटि नागरिकों को भी இந்த நாட்டின் கோடிக்கணக்கான குடிமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நேரம் இது. अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, என் அருமை நாட்டு மக்களே, 70 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। 75 ஆண்டு கால நம்முடைய இந்த பயணம் பல மேடு பள்ளங்களை சந்தித்துள்ளது. और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है। பல துன்பங்களுக்கு இடையேயும் நம்முடைய நாட்டு மக்கள் பல மைல் கல்களை எட்டியிருக்கிறார்கள். संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है और इसलिए தங்கள் முடிவுகளுக்கு, உறுதியான நிலைப்பாடுகளுக்கு எந்த விதமான ஒரு பங்கமும் வராமல் நாட்டு மக்கள் பார்த்துக் கொண்டார்கள். भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे गांव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे। இந்த நாட்டு மக்களை பயமுறுத்துவதற்கு பல விஷயங்கள் செய்யப்பட்டன. சுதந்திரம் கிடைத்தவன் நாட்டிலிருந்து வெள்ளையர்கள் வெளியேறினால் நாடு வீணாக போய்விடும், மோசமான பொருளாதார நிலைக்கு தள்ளப்படும் என்றெல்லாம் கூறினார்கள். ஆனால் இன்று இந்தியா சாதனை செய்து காட்டியிருக்கிறது. वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है। இந்த மண்ணில் உள்ள மக்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கிறது. நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் நடத்தி செல்லும் திறமை இருக்கிறது. संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की। சில சமயம் நாடு போரினால் பாதிக்கப்பட்டது, தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டது, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, இயற்கை பேரிடர்கள் நிகழ்ந்தன, विफलता, आशा, निराशा, ஆசைகள், நிராசைகள், வெற்றி, தோல்வி அனைத்தும் வந்தன. पड़ाव के बीच भी भारत
आगे बढ़ता रहा। ஆனால் இவைகளுக்கு நடுவிலும் நாடு முன்னேறி சென்றது. जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है. இந்தியாவின் அந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற அந்த வேற்றுமையில்தான் இந்தியாவின் பலம். एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है. நாட்டில் ஒரு मस्तिष्क का திறமை உள்ளொளிந்து கிடக்கிறது. और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है. அது என்னவென்றால் डेमोक्रेसी है. இந்தியா ஜனநாயகத்தின் जिनके जहन ताई. में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है. ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, இந்த மதர் ஆஃப் டெமோக்ரசி, की जननी हमारे भारत में ஜனநாயகத்தின் தாய் நம்முடைய நாடு सिद्ध कर दिया. என்பதை நிறுவி இருக்கிறது. ये एक अनमोल सामर्थ्य है. இது ஒரு தனிப்பட்ட திறமைதானே. प्यारे देशवासियों, என் अरुமை நாட்டு மக்களே, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हर एक के प्रयास से हम जहां तक पहुंच पाए थे, पहुंचे थे. 75 ஆண்டு கால இந்த பயணத்தில் நாம் எங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறோமோ, देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया. आजादी के बाद जन्मा हुआ 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு मैं पहला இந்த நாடு எனக்கு இந்த நாட்டை வழிநடத்தும் பொறுப்பை தந்தது. लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला. இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க செங்கோட்டையிலிருந்து தேச மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தும் பெருமையை தந்தது. जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं. உங்களிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன். आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा உங்களுடைய बसती है, சுக துக்கங்களை புரிந்து கொண்டேன், உங்களை புரிந்து கொண்டேன். उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया. இந்த அனுபவங்களை கொண்டு என்னுடைய இந்த ஆட்சி காலத்தில் மக்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கும் அந்த செயல்களை நான் செய்து வருகிறேன். आदिवासी हो, महिला हो, ஏழை, युवा हो, தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள், ஆதிவாசிகள், दिव्यांग हो, पूरब हो, மகளிர், पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, உடல் ஊனமுற்றோர், समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, இவர்கள் அனைவருக்கும் हर कोने में நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையில் இருக்கும் இத்தகைய மக்களுக்கு आखिर इंसान की चिंता करने का महात्मा गांधी தேவையானவைகளை செய்வதற்கான முயற்சிகள் செய்துள்ளேன். अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की मैंने अपने आप மகாத்மா காந்தி அவர்கள் நாட்டின் கடைக்கோடியில் இருக்கும் அந்த மனிதனுக்கு எல்லா வசதிகளும் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னார். அதை செய்ய நான் முயற்சி செய்திருக்கிறேன். आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गौरव से भर जाता हूं. देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है. एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है. இந்த நாட்டின் மக்கள் சமூகம் हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में நாடு உன்னதம் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை கொண்ட ஒரு சமூகம், ஆஸ்பிரேஷனல் சொசைட்டி. आकांक्षाएं उफान पर है. देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है.
நாட்டு மக்கள் நாட்டின் நிலையை மாற்ற நினைக்கிறார்கள், உயர்த்த நினைக்கிறார்கள். ஆனால் वो गति चाहता है। அதற்காக காத்திருக்க அவர்கள் விரும்பவில்லை. உடனே தங்கள் கண் முன்னால் தங்களுடைய வாழ்நாள் காலத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित தங்களுடைய है। வாழ்நாளிலே தம் கண் முன்னாலே இந்த வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है। இத்தகைய ஆர்வம் கொண்ட ஒரு சமூகத்தின் மக்களுக்கு विश्वास है பணியாற்ற விரும்புகின்ற அரசாங்கமும் கத்தி முனையில் स्वराज की संस्थाएं हो, நடக்க வேண்டியிருக்கிறது. किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। அரசாங்கம், மக்கள் சமூகம் ஒவ்வொன்றும் இந்த எதிர்பார்க்கும் சமூகத்தின் தேவைகளுக்கு लंबे பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। இந்த சமூகம் வருகின்ற அந்த தலைமுறை தங்களுடைய நலன்களுக்காக காத்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையை உருவாக்க விரும்பவில்லை. हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए இத்தகைய ஆர்வமுள்ள மக்கள் சமூகத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை. मेरे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। एक सामूहिक चेतना சில का நாட்களாக पुनर्जागरण சமூக விழிப்புணர்வு நாட்டில் ஏற்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये இந்த पुनर्जागरण விழிப்புணர்வு देखिए, மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள இந்த விழிப்புணர்வு நம்முடைய 10 अगस्त तक लोगों माबेरम को पता सेल्वम। नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है। बड़े बड़े இந்நாட்களில் மூவண்ண கொடியை கையில் ஏந்தி நடக்கின்ற பல யாத்திரைகள் நம் மனதை வதீகரிக்கின்றன. भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। நம் நாட்டு மக்களிடையே இத்தனை ஒற்றுமை, இத்தனை திறமை இருக்கிறது என்பதை இந்த மூவண்ண கொடி நமக்கு காட்டியிருக்கிறது. जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் இந்த விழிப்புணர்வு பேரணிகள் நடக்கின்றன. वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। கொரோனாவில் முன்கள போராளிகளுக்கு कोरोना के काल தங்களுடைய वैक्सीन लेना या न लेना, ஒத்துழைப்பை காண்பிக்கும் வகையில் ஒவ்வொருவரும் வீட்டில் விளக்கேற்றிய போது அந்த விழிப்புணர்வு வெளிப்பட்டது. उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। 200 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது என்பது உலகில் இந்த விழிப்புணர்வு இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। இந்த புதிய விழிப்புணர்வை உலக மக்கள் அனைவரும் பார்க்கின்ற மற்றொரு நிகழ்ச்சியும் நடந்திருக்கிறது. समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है दोस्तों।
உலகின் विश्व का ये பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை இந்தியாவில் தேடுவதற்கான அந்த வாய்ப்பினை இந்தியா இப்போது அளிக்கிறது. 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है. हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है. நல்ல முடிவுகளை மேற்கொண்டு அதன் வழியிலே நடக்கின்ற நம்மை உலகம் வியப்போடு பார்க்கிறது. उम्मीदें लेकर के जी रहा है. उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है. मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं. और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की. இதனை நான் 3 சக்திகளாக பார்க்கிறேன். ஆஸ்பிரேஷன், மறுமலர்ச்சி, விழிப்புணர்வு, உலகின் நம்பிக்கை, நம் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கை. இந்த 3 சக்திகளாக நான் பார்க்கிறேன். 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है. और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है. हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं. और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है. आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं. और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है. लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे. और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, செங்கோட்டையின் இந்த மேடையில் இருந்து இந்த 120 கோடி மக்களின் அர்ப்பணிப்பு உணர்வை நான் வணங்குகிறேன். साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी. நாம் வருகின்ற 25 ஆண்டுகளில் முக்கியமான 5 விஷயங்களில் நம்முடைய சக்தியை செலுத்த வேண்டும். केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के பஞ்ச பிராணன் எனப்படும் அந்த 5 விஷயங்கள் 100 साल होंगे. आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा. சுதந்திரத்தின் 100 ஆண்டுகள் முடிவடையும் போது அப்போதுதான் நம்முடைய கனவுகள் நிறைவேறும். जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण अब देश
बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। அதில் முதலாவது बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। சில முக்கியமான முடிவுகளை மேற்கொண்டு நடத்த நாம் மேலே செல்ல வேண்டும். विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால் எந்த ஒரு மூலையிலும் அடிமையின் அந்த ஒரு சிறு கூறு இருந்தாலும் அதனை நாம் 100% நீக்க வேண்டும். सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है. அடிமை வாழ்வு நம் மனதிலே ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற அந்த தேவையில்லாத எண்ணம், हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी. அவற்றிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும். दूसरी प्राण शक्ति है. तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए. மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்றால் நமது நாட்டை பற்றி நமக்கு கர்வம் இருக்க வேண்டும். நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है. यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है. இந்த நாடு சமூக நீதியை கொண்டு வந்த நாடு. और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए. இந்த நாட்டின் பற்றி நமக்கு கர்வம் இருக்க வேண்டும். वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है. நான்காவது விஷயமும் மிக முக்கியமானது. और एकजुटता, ஒற்றுமை, ஒன்றாக இணைதல். 120 கோடி மக்களும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए ஒற்றுமையின் வலிமை ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதத்தின் பெருமையை உலகிற்கு காட்டும். पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य. ஐந்தாவது விஷயம் என்னவென்றால் குடிமக்களின் கடமை. जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है. கடமை என்று சொல்லும்போது நான் பிரதம மந்திரியை விட்டுவிடவில்லை, மற்ற அமைச்சர்களை விட்டுவிடவில்லை. அவர்களும் இந்திய குடிமக்கள் தான், அவர்களுக்கும் கடமைகள் இருக்கின்றன. बड़ी प्राण शक्ति है. मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, அன்பிற்குரிய நாட்டு மக்களே, கனவுகள் பெரியதாக இருக்கும்போது, जब संकल्प बड़े होते हैं, முடிவுகள் பெரியதாக இருக்கும்போது बड़ा होता है, முடிவுகளும் பெரிதாகவே இருக்கும். अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए. देश उठ खड़ा हुआ था. किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था. लेकिन संकल्प बड़ा था आजादी. और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे. हम இதற்கு முன்பு आजाद என்ன நடந்தது என்பதை யோசித்து பாருங்கள். अगर संकल्प छोटा होता ஒருவர் அமைதி மார்க்கத்திலே போராடினார், ஒருவர் तो शायद ஆயுதம் எடுத்து போராடினார், संघर्ष करने के दिन चालू रहते. அரசியல் நிர்ணய சட்டசபை வழியாக போராடினார்கள். ஆனால் இவர்கள் அனைவருடைய அந்த मेरे प्यारे देशवासियों, முடிவு பெரியதாக இருந்தது. நாட்டுக்கு சுதந்திரம் பெறுதல் என்ற பெரிய முடிவாக இருந்தது. அதை நாம் அடைந்திருக்கிறோம். तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है. வருகின்ற 25 ஆண்டுகளில் நாம்
ஒரு வெற்றி 20-22-25 साल के नौजवान இந்தியாவை मेरे देश உருவாக்க के வேண்டும். सामने है। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल நாடு 100வது சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடும் போது நீங்கள் உங்களுடைய 50வது வயதிலே இருப்பீர்கள். என்னுடைய நாட்டின் இளைஞர்களே, आप संकल्प இந்த लेकर के मेरे साथ போர்க்காலத்தில் நீங்கள் நாட்டை உயர்த்த கடுமையாக பாடுபட வேண்டும். करके चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। என்னுடைய நாடு வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாறும். हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे மக்கள் केंद्र में நலனை மனத்தில் கொண்டு நாம் வளர்ச்சி அடைவோம். हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और நான் गंदगी के இந்தியாவை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விஷயத்தை இங்கே இந்த செங்கோட்டையிலிருந்து கூறிய போது நாடு முழுவதும் இந்தியாவை சுத்தமாக வைப்பதற்காக செயல்பட்டது, பாடுபட்டது. जिसने वैक्सीनेशन दुनिया दुविधा में थी 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया। அதே போல தடுப்பூசி செலுத்துதல் 200 கோடி தடுப்பூசிகளை நாம் செலுத்தி இருக்கிறோம். देश कर सकते, உலகமே வியப்போடு பார்க்கிறது. हमने तय किया था देश को खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்ற பெட்ரோலின் செலவை எப்படி குறைப்போம், लेकिन समय எத்தனால் பயன்படுத்தலாம் என்ற முடிவை நாம் எடுத்தோம். 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर இப்போது भाइयों बहनों, எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை 2.5 करोड़ நாடு உபயோகிக்க தொடங்கிவிட்டது. बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों இவையெல்லாம் परिवारों के घर சிறிய வேலைகள் அல்ல, இதனை நாடு செயல்படுத்தி காண்பித்திருக்கிறது. नल से जल पहुंचाने का काम ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டம், இதை செயல்படுத்தி இருக்கிறோம். मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े, நமது निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते। அனுபவம் என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு முறை நாம் நல்ல முடிவெடுத்து அதன் வழியிலே நடக்கத் தொடங்கிவிட்டால் அதை நிச்சயம் அடைந்தே தீருவோம். हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर நாட்டில் क्षेत्र மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்குவதோ पहले से மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதோ இதுவாக இருந்தாலும் நாம் வெற்றியடைந்திருக்கிறோம். अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो, यही हमारा வருகின்ற 25 ஆண்டுகள் நாம் ஒரு பெரிய முடிவுகள் எடுத்து நடக்க வேண்டும். मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी, कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? உலகம் வழங்குகின்ற அந்த சான்றிதழ்களை கொண்டு நான் எவ்வளவு நாள் வாழ்க்கை நடத்துவோம்? நம்முடைய நாடு வழங்குகின்ற சான்றிதழ் வழங்கும் அமைப்புகள் இங்கே இருக்க வேண்டாமா? जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम ஒவ்வொரு जैसे விஷயத்திற்கும் மேற்குலகை பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए, हमारे मन के भीतर அடிமை வாழ்விலிருந்து நமக்கு நாம் விடுபட வேண்டும். गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं, जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, நான் உங்களுக்கு जिस ஒரு मंथन के साथ बनी, உறுதியளிக்க விரும்புகிறேன். தேசிய கல்விக் கொள்கை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விதத்திலே நாம் அத்தகைய நிலையை அடைவோம் என்று நான் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी। रसखस हमारी धरती के मिले हैं,
हमने जो कौशल्य पर बल दिया है, ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है। ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। நம்முடைய हमें திறமையின் அந்த முயற்சிகள் எல்லாம் நம் ஆசைகளில் கட்டுண்டு கிடக்கின்றன. वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई ये बैठ सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। நம்முடைய முற்கால சந்ததியினர் நமக்கு தந்திருக்கின்ற அந்த அறிவு, அதனை கர்வத்தோடு நம் உலகிற்கு சொல்ல வேண்டும். देख रहे हैं स्टार्टअप देख रहे हैं, कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टियर 2 टियर 3 सिटी में किसी गांव இப்போது गरीब நாம் परिवार में பல புதிய ஸ்டார்ட் அப்களை பார்க்கிறோம், யூனிகார்ன்களை பார்க்கிறோம். இவைகளை எல்லாம் உருவாக்கியவர்கள் யார்? नई नई இந்திய இளைஞர்கள். के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजी देनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य पे भरोसा करना होगा। दूसरी एक बात जो मैंने कही, तीसरी मेरी प्राण शक्ति की बात है, वो है हमारी विरासत पर। மூன்றாவது விஷயமான நம்முடைய நாட்டை பற்றிய கர்வம். जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। நாம் நம்முடைய நாட்டோடு ஒன்றுபடும் போதுதான் நம்மால் உயரமான அளவிற்கு और जब हम ऊंचा उड़ेंगे வளர முடியும். हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। நாம் வளர்ச்சி அடையும் போது உலகின் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண முடியும். जब हम अपनी चीजों पे गर्व करते हैं, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा कर रही है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है। நம்முடைய பொருள்கள் மீது நமக்கு கர்வம் இருக்க வேண்டும். உலகம் ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் கேர் பற்றி விவாதிக்கும் போது பாரதத்தை நோக்கி அதன் பார்வை திரும்புகிறது. दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है। अब हमारी ताकत देखिए, हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ நாம் रहा है, இயற்கையோடு வாழ தெரிந்தவர்கள். वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है। உலக வெப்பமயமாதல் பற்றிய பிரச்சனை பேசப்படும் போது இந்தியாவின் கருத்துக்களை உலகம் கேட்கிறது. एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, हम लाइफ मिशन की बात करते हैं तो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे पास एक सामर्थ्य है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान मिलेट हमारे यहाँ तो घर घर की चीज रही है। சிறுதானிய வகைகள் நம்முடைய நாட்டின் ஒரு பெரும் செல்வம். छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब இன்று हमारी உலகம் विरासत को आज दुनिया அகில உலக சிறுதானிய தினம் கொண்டாடுவதற்காக, ஆண்டு கொண்டாடுவதற்காக हमारे फैमिली में ஒத்துக்கொண்டுள்ளது. विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो लोगों को योग दिखता है। மன அழுத்தம், உலக மக்களின் மன அழுத்தம் பற்றி பேசும்போது அங்கே யோகா அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं, இத்தகைய இந்த நாட்டை பற்றி நாம் கர்வப்பட வேண்டும். वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं நாம் जो नदी को मां मानते हैं। மனிதனில் கடவுளை பார்க்கிறோம், பெண்களில் சக்தியை பார்க்கிறோம், மரத்திலே தேவதைகளை பார்க்கிறோம். सामर्थ्य है, हर नदी में मां का रूप देखते हैं। ஒவ்வொரு நதியிலும் தாயின் உருவத்தை பார்க்கிறோம். हमारा गौरव हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया।
हम वो लोग வசுதேவ हैं குடும்பகம் என்ற எண்ணத்தை உலக மக்களுக்கு தருவது நம்முடைய நாடு. विप्रहा बदवा वदंती। आज जो होलियर देन दाव का जो संकट चल रहा है, तुझसे बड़ा मैं हूं, ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सत विप्रादा बहुधा वदंती का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है। जो कहते हैं सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कितनी बड़ी सोच है जो ब्रह्मांड இந்த में है। பிண்டத்திலிருந்து தான் பிரம்மாண்டம் உருவானது என்று சொல்கின்ற மக்கள் நம் நாட்டு மக்கள். करने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जितने दुनिया का कल्याण देखा है। हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं। மக்கள் நலனே இந்த यहाँ पर चलने वाले மாநிலத்தின் நலன் என்று உலக நலனை போதித்தவர்கள் நாம். करते हैं तब कहते हैं सर्वे अपनी सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया। சர்வே சந்து சுகினஹா சர்வே சந்து நிராமயா என்ற அருமையான தத்துவத்தை உலகிற்கு சொன்னது நம் நாடு. हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखे। ये प्राण शक्ति है हमारी। நாம் கர்வத்தோடு நம் நாட்டின் பெருமைகளை ஏற்று உலகிற்கு சொல்ல வேண்டும். मेरे प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता एकजुटता। அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஒற்றுமையும் ஒன்றோடு ஒன்றுபட்டு செயல்படுவதும். उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। நாட்டின் வேற்றுமைகளை நாம் கொண்டாட வேண்டும். परंपराएं ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी இங்கே அனைவரும் ஒன்றுபட்டவர்கள். என்னுடையதும் அல்ல உன்னுடையதும் அல்ல நம்முடையது என்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள். अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते। ஆணும் பெண்ணும் சமமில்லை என்றால் ஒற்றுமை எப்படி வளரும்? जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, ஒற்றுமையை பற்றி பேசும்போது நாம் இடத்தில் ஒரு அளவுகோல் இருக்க வேண்டும். இந்தியா முதலில், हमें एकता से बांधने நாடு முதலில் என்ற தத்துவம் நம்மிடையே பரவ வேண்டும். पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से हम सबकी पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। என்னுடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்ற ஒரு மனக்கவலையை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். இதை செங்கோட்டையிலிருந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இல்லை, இருந்தாலும் இதை நான் வேறு எங்கிருந்து சொல்லுவேன்? किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெண்களை அவமானப்படுத்துகின்ற சில செயல்கள் சொற்கள் எப்படியோ வந்து புகுந்து விட்டன. स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से தினசரி வாழ்க்கையில் मुक्ति का குணங்களின் அடிப்படையில் மகளிரை பெண்களை அவமானப்படுத்துகின்ற அந்த விஷயத்தை நாம் உடனடியாக மாற்ற வேண்டும். नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। பெண்களுக்கு அளிக்கப்படும் மரியாதை நாட்டு மக்களுக்கு, நாட்டிற்கு அளிக்கப்படும் மரியாதையை உயர்த்தும். इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। எனவே நான் இதை சொல்லுகிறேன். मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं, और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य।
दुनिया में ஐந்தாவது பிராணசக்தியாக நான் குறிப்பிட்டது இந்த குடிமக்களின் நாட்டு மக்களின் கடமை. कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं. एक, अनुशासित जीवन. दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण. व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, ஒரு समाज की हो, கட்டுப்பாடு परिवार மிகுந்த வாழ்க்கை, की हो, நாட்டிற்கு நாம் ஆற்ற வேண்டிய கடமையை செய்தல், இவை இரண்டும் முக்கியமானவை. मूलभूत प्राण शक्ति है. और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा. यह शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं. நாட்டு மக்களுக்கு மின்சாரம் வழங்க வேண்டியது அரசின் கடமை. ஆனால் सरकार का प्रयास है, लेकिन குடிமக்களின் கடமை என்னவென்றால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மின்சக்தியை சேமிப்பது. ना मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए. केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती வேதிப்பொருட்கள் இல்லாத விவசாயம், हमारा कर्तव्य है. இயற்கை விவசாயம், ஆர்கானிக் விவசாயம் நாம் செய்ய வேண்டும். चाहे पुलिस हो या पीपल हो, शासक हो या प्रशासक हो, காவலர்களோ பொதுமக்களோ ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता. ஆட்சியாளர்களோ அல்லது हर कोई அதிகாரிகளோ नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है தங்களுடைய கடமையை செய்தால் நாடு வளம் பெறும். इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में நாம் நினைத்த இலக்குகளை அடைய முடியும். प्राप्त कर सकते हैं. मेरे प्यारे देशवासियों, என் அன்பிற்குரிய நாட்டு மக்களே, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती भी है. मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज. ये उनका मंत्र है. ஸ்வதேசியிலிருந்து ஸ்வராஜ், ஸ்வராஜிலிருந்து சுராஜ் என்கின்ற நல்லாட்சி அடைய முடியும் என்று அவர் சொன்னார். दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे. क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार நம் நாட்டு संकल्प உணவு लेते हैं. தேவைக்காக நாம் வெளிநாட்டிலிருந்து और इसलिए உணவுப் பொருளை வரவழைத்தோம். ஆனால் நாடு இனி உணவுக்காக வெளிநாடுகளில் கையேந்த மாட்டோம் என்று முடிவு செய்த போது நாம் அந்த இலக்கை அடைந்தோமா இல்லையா? समाज की हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है. ये கிரீன் आत्मनिर्भर ரெவல்யூஷன் என்பது சமூகத்தின் ஒரு கடமையாகிவிட்டது. कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है. मेरे साथियों, அன்பு நண்பர்களே, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है. 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है. 75 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதலாக நாடு இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பீரங்கியின் மூலம் நமது கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்தியுள்ளது. और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं. நான் இந்த நாட்டின் இராணுவ வீரர்களுக்கு என் இதயபூர்வ வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मेरे स्वरूप में, साहस के स्वरूप में இவர்கள் मेरी கடமையின் ஒரு வடிவம், தைரியத்தின் ஒரு வடிவம். नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्त. उनको आज मैं सलाम करता हूं, நான் அவர்களுக்கு क्योंकि सेना का जवान சல்யூட் செய்கிறேன், வணக்கம் செய்கிறேன். मुट्ठी में लेकर के चलता है. मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है.
और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की ये நம்முடைய ராணுவ வீரர்கள் கையிலே ஆயுதம் எடுத்துக்கொண்டு எல்லையை காத்து நிற்கும் அந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு இந்தியாவிலேயே உருவாக்கிய ஆயுதங்களை வழங்குவோம் என்ற முடிவெடுத்து நாம் அதை செயல்படுத்தி இருக்கிறோம். बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं. सैल्यूट सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को सैल्यूट. ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு என்னுடைய சல்யூட். मैं आज मेरे छोटे छोटे बालकों को 5 साल 7 साल की आयु के बालक उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं. 7 ஆண்டு 8 ஆண்டு சிறு வயது குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். जब देश के सामने चेतना जगी मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है 5-5 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलते. இந்த குழந்தைகள் வெளிநாட்டு பொம்மைகளை வைத்து நாங்கள் விளையாட மாட்டோம் என்று வீட்டிலே சொல்லுகிறார்கள் என்பதை நான் கேள்விப்பட்டேன். घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे ये जब सब संकल्प करता है ना வெளிநாட்டு பொம்மைகளை வைத்துக்கொண்டு விளையாட மாட்டோம் என்ற முடிவினை நாம் எடுக்கும்போது उसकी रगों में दौड़ता है. இந்திய தன்மை நம்முடைய உடலிலே ஓடுகிறது. पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब अजमाने आ रहे हैं. PLA திட்டத்தின் மூலமாக 1 கோடி ரூபாய் உலக நாடுகள் இந்தியாவிலே முதலீடு செய்ய வருகின்றன. भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है. பொருள்களின் உற்பத்தி மையமாக பாரதம் மாறி வருகிறது. आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो आज देश மின்னணு பொருள்களின் உற்பத்தி மொபைல் போன்களின் உற்பத்தி அனைத்தும் நாட்டிலே பெருகி வருகிறது. कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा. दोस्तों आज हमारी मेट्रो कोचेज हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण மெட்ரோ ரயில்கள் வந்தே பாரத் ரயில்கள் உலகத்தை ஈர்க்கின்றது. आत्मनिर्भर बनना है. நாம் சுயசார்பு உடையவர்களாக மாற வேண்டும். हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे और हमें மின்சார உற்பத்தியில் நாம் சுயசார்பு அடைந்தவர்களாக மாறுகின்ற வகையிலே வரையில் இதை அடைய முடியாது. मिशन हाइड्रोजन हो बायोफ्यूल की कोशिश हो மிஷன் ஹைட்ரஜன் பயோஃபியூவல் व्हीकल पर जाने की बात हो மின்சார வாகனங்கள் आत्मनिर्भर बन करके இவை அனைத்திலும் சுயசார்பு இந்தியாவாக நாம் மாற வேண்டும். देशवासियों आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है. இயற்கை விவசாயமும் சுயசார்பு அடைவதற்கான ஒரு வழி. आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं. நேனோ உரங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் நாட்டில் உருவாக்கப்படுகின்றன. आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है. आज வேதியியல் உரங்களில் இருந்து இந்த நேனோ உரங்கள் நமக்கு விடுதலை அளிக்கும். ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं. भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है. ड्रोन की बहुत दुनिया में விண்வெளி துறையை நாம் திறந்து விட்டிருக்கிறோம். ஆளில்லா விமானங்கள் ட்ரோன்கள் துறையை திறந்து விட்டிருக்கிறோம். नए द्वार खोल दिए हैं. मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं. आइए தனியார் துறையும் வரவேற்கிறேன். जाना है. आत्मनिर्भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में உலகின் தேவைகள் என்னென்னவோ அவற்றையெல்லாம் உருவாக்கி உலகிற்கு அளியுங்கள். இதுதான் சுயசார்பு அடைவதற்கான ஒரு வழிகளில் ஒன்று. जीरो डिफेक्ट
हमें उस करके நாம் உருவாக்கும் பொருள்களில் எந்த விதமான குறைபாடும் இருக்கக்கூடாது. स्वदेशी पर ஜீரோ டிஃபெக்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட் प्यारे देशवासियों, என்பது நமது கொள்கையாக இருக்க வேண்டும். हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं. நான் பலமுறை जय जवान जय லால் பகதூர் சாஸ்திரியினுடைய நினைவு போற்றுகிறேன். ஜெய் ஜவான் ஜெய் கிசான் என்ற அவருடைய கோஷம் என் காதுகளிலே எதிரொலிக்கிறது. बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी. இதனோடு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயி அவர்கள் ஜெய் விக்யான் என்பதையும் சேர்த்தார். लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है இப்போது और वो है அமிர்த காலத்திற்கு अनुसंधान. மேலும் जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान. ஜெய் அனுசந்தான் என்ற கோஷத்தையும் நான் சேர்க்கிறேன். मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है. இந்த நாட்டின் இளைஞர் சமுதாயத்தின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. हमारा यूपीआई भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान आज विश्व में रियल टाइम 40% நம்முடைய டிஜிட்டல் பேமெண்ட் துறை ஃபின்டெக் இன் வளர்ச்சி ट्रांजेक्शन होता है. உலகத்தில் मेरे देश பெரிய ஆச்சரியத்தை தந்திருக்கிறது. என்னுடைய நாட்டின் இளைஞர்கள் இதை சாதித்திருக்கிறார்கள். मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं. என் அன்பிற்குரிய நாட்டு மக்களே, நாம் இப்போது 5G அலைக்கற்றை हम कदम मिलाने वाले हैं. பயணம் செய்யவிருக்கிறோம். ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव में पहुंचा रहे हैं. ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கிராமங்களுக்கெல்லாம் செல்கிறது. गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है. आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं. 4 லட்சம் காமன் சர்வீஸ் சென்டர்கள் கிராமங்களில் இன்று உருவாக்கப்படுகிறது. देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और கிராம அளவில் 4 லட்சம் டிஜிட்டல் தொழில் முனைவோர் உருவாகி வருகிறார்கள் என்பது நாடு கர்வப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है, मेरे प्यारे देश, தொழில்நுட்ப மையமாக பாரதம் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मार रहे हैं, 5G की ओर कदम मार रहे हैं, ऑप्टिकल 5G, फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, செமிகண்டக்டர் ये सिर्फ போன்றவற்றிலும் நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம். 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है. शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है. स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है. कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है. இதில் 3 முக்கியமான சக்திகள் அடங்கியிருக்கின்றன. கல்வி, விவசாயம் போன்ற துறைகளில் டிஜிட்டல் மூலம் பெரும் புரட்சி ஏற்படவிருக்கிறது. ये डेकेड मानव जात के लिए टेकेड का समय है. இது टेक्नोलॉजी का decade. மனிதர்களுக்கான 10 ஆண்டு காலமாக இது இருக்கும். तो ये टेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है. तो ये टेकेड का सामर्थ्य ஐடி உலகத்தில் பாரதம் தனக்கென ஒரு இடத்தை வகுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं. நம்முடைய युवा ஸ்டார்ட்அப்கள், पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं. யூனிகான்கள் ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்கி வருகின்றன. हमारा डीप ओशन मिशन की बात हो, समुद्र की गहराई में जाना हो, या हमें आसमान को கடலின் छूना. ஆழத்தில் சென்று ஆராய்ச்சி செய்வதாக இருக்கட்டும், வானத்தில் சென்று ஆய்வு செய்வதாக இருக்கட்டும், मेरे प्यारे देशवासियों, அனைத்திலும் நாம் வளர்ச்சி हम इस அடைந்து बात को வருகிறோம். न भूलें. और भारत ने सदियों से देखा हुआ है, जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है. भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है. और इसलिए हमारे छोटे किसान, उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी, उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, பொருளாதாரத்தில் நாடு வளம் பெற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சிறு விவசாயிகள், சிறு தொழிலதிபர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நாம் செய்ய गांव வேண்டும். में काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, வீடுகளில் வேலை செய்பவர்கள், தெருவில் கடை வைத்திருப்பவர்கள், ये समाज का ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுபவர்கள்,
इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है। இவர்கள் வலுப்பெறுவது இந்தியா வலுப்பெறுவதற்கு आर्थिक विकास की மிகவும் जो உதவும். मूलभूत जमीनी ताकत है, उस ताकत को सर्वाधिक बल देने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। இவர்களுக்கு வலு அளிக்கும் வகையில் நாடு செயல்பட்டு வருகிறது. हमारे पास 75 साल का अनुभव है। நம்மிடத்தில் 75 ஆண்டு கால அனுபவம் இருக்கிறது. 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने இந்த 75 ஆண்டுகளில் நாம் பல வெற்றிகளையும் அடைந்திருக்கிறோம். सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए, புதிய கனவுகளையும் लेकिन கண்டிருக்கிறோம். अमृतकाल के लिए புதிய முடிவுகளையும் எடுத்திருக்கிறோம். हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से நீதிமன்றங்களில் பணிபுரியும் வக்கீல்களில் மகளிர்களின் எண்ணிக்கை, அவர்களுடைய நாரி சக்தி அதிகரித்து வருகிறது. கிராம உள்ளாட்சிகளில் அங்கத்தினர்களாகவும் தலைவர்களாகவும் பெண்கள் வருகிறார்கள். सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी காவல்துறையை பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய நாரி சக்தியின் की जिम्मेवारी उठा रही है। பங்களிப்பை பார்க்க முடிகிறது. हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी பெண்களின் शक्ति இந்திய நாட்டின் பெண்களின் சக்தி विश्वास के साथ அதிகரித்து வருகிறது. मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख। வருகின்ற 25 ஆண்டுகளில் இந்திய நாட்டின் பெண்கள் சக்தி இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று நான் हिसाब किताब से ऊपर है, எதிர்பார்க்கிறேன். सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी நம்முடைய बेटियों के लिए केंद्रित, மகளிருக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் நாங்கள் தருவோம். हमें बहुत कुछ लौटा करके देंगे। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे। மகளிருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் போது நம்முடைய கனவுகள் और इसलिए மேலும் வலுப்பெறும். हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके நான் spirit அரசியல் நிர்ணய சட்டசபையை உருவாக்கியவர்களுக்கும் இன்று நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். हम कंधे पे அவர்கள் कंधा நமக்கு ஒரு ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள். तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास। நான் हम குஜராத்தில் முதல்வராக இருந்தபோது மத்தியில் எங்களுடைய கட்சியினுடைய ஆட்சி நடக்கவில்லை. இருந்தாலும் குஜராத்தில் நான் நாட்டை முன்னிறுத்தி நான் பல திட்டங்களை கொண்டு வந்தேன். बहुत भूमिका अदा की, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं। ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ
कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें இன்று विकास கோஆபரேட்டிவ் की जरूरत है। ஃபெடரலிசம் राज्य को लगना चाहिए அதோடு राज्य आगे निकल गया। கோஆபரேட்டிவ் காம்படிட்டிவ் ஃபெடரலிசத்திற்கும் தேவை இருக்கிறது. उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है। ஒரு மாநிலம் 10 நல்ல வேலைகளை செய்தால் எங்களுடைய மாநிலம் அதைவிட சிறப்பாக 15 நல்ல வேலைகளை செய்யும் என்ற மாதிரியான எண்ணம் ஏற்பட வேண்டும். स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए இத்தகைய எண்ணம் நாட்டை प्यारे देश வளர்ச்சியின் பல படிநிலைகள் உயர்த்தி செல்லும். 25 वर्ष का अमृत काल के लिए जब हम चर्चा करते हैं तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक है। வருகின்ற 25 ஆண்டுகளில் நமக்கு சவால்கள் அதிகம். भी है, बहुत कुछ है, हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। நாம் लेकिन நம்முடைய வழியை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். 2 विषयों को तो எப்போதும் मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। முயற்சி चर्चा செய்து अनेक கொண்டே विषयों पर இருக்கிறோம். हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। இப்போது 2 விஷயங்கள் பற்றி நான் பேச விரும்புகிறேன். हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत இந்த जैसे சமயத்தில் நான் 2 விஷயங்களை பற்றி பேச விரும்புகிறேன். ஒன்று ஊழல், மற்றொன்று गरीबी से जूझ रहे हैं। குடும்ப நலனுக்காக செயல்படுதல். जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति ஒரு பக்கம் வீடே இல்லாத மக்கள், இன்னொரு பக்கம் தாங்கள் திருடிய சொத்துக்களை எங்கே வைப்பது என்பதற்கான இடமில்லாத மக்கள். पूरी ताकत से लड़ना है। இவர்களை எதிர்த்து வலிமையோடு நாம் போராட வேண்டும். डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் செலுத்தும் முறையின் மூலம் 2 கோடி ரூபாய் தவறான கைகளுக்கு போகாமல் நேரடியாக மக்களுக்கு செல்லும் வகையில் இந்த அரசு செயல்பட்டிருக்கிறது. वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को வழக்கு लूटा है என்னவென்று தெரியாமலே பலர் खाना पड़े वो स्थिति। சிறையில் வாடுகின்றனர். भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। ஊழலுக்கு எதிராக நாம் ஒரு பலமான முடிவெடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके ஊழல் खिलाफ लड़ाई लड़नी है। நாட்டு लड़ाई को तेज மக்களை மிகவும் பாதித்து வருகிறது. मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ இவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு आपसे साथ मांगने आया। 120 கோடி மக்கள் எனக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டும். इस लड़ाई को लड़ पाऊं, அப்போதுதான் இந்த போரில் என்னால் முழு வலியோடு ஈடுபட முடியும். भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं।
நாம் பெருமையோடு வாழ்வதற்கு இந்த ஊழலை ஒழிப்பதற்கான போரில் எனக்கு நீங்கள் உதவி அளிக்க வேண்டும். का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है. किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा. और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं. பலர் उनकी शान शौकत में लगे रहते ஊழல் வழக்குகளில் சிக்கி हैं, बनाने में लगे. நீதிமன்றங்களில் தண்டனை பெற்ற பின்னரும் जब तक समाज மீண்டும் में பல இடங்களில் தலைமை ஏற்கும் नहीं होती है, வேதனையை நாம் பார்க்கிறோம். जगती नहीं है. जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देख ஊழல் செய்பவர்களுக்கு எதிரான ஒரு எண்ணம் மக்கள் மனதில் தோன்றாவிட்டால் நாடு வளம் பெறாது. भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत ஊழலை எதிர்த்தும் ஊழல் செய்பவர்களை எதிர்த்தும் நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் வந்துவிட்டது. और जब मैं भाई भतीजावाद परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं. जी नहीं. நாம் குடும்ப भाग्य से வாதத்தை பற்றி பேசும்போது ஏதோ அரசியல் கட்சிகளை பற்றி பேசுகிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம். हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है. நாட்டின் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் குடும்பவாதம் என்பது வளர்ந்து வருகிறது. अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है. இந்த குடும்பவாதத்தால் இந்த நாட்டில் உள்ள திறமையானவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். पांच अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है. இந்த குடும்பவாதத்தினால் திறமையுள்ள பலர் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் நஷ்டமடைகிறார்கள். उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं. इस परिवारवाद से भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी. இந்த जागरूकता पैदा. குடும்ப நலன் என்பதை எதிர்த்து நாம் ஒரு வெறுப்பை உருவாக்க வேண்டும். संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है. இது उसी நாட்டின் प्रकार से ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற்கு மிகவும் அவசியம். परिवारवाद ने அரசியலிலும் இந்த குடும்ப நலன் என்பது परिवारवादी राजनीति பெரும் விளைவுகளை भलाई के लिए होती ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है. இது குடும்ப வளர்ச்சிக்கு மட்டுமே உதவும், நாட்டு வளர்ச்சிக்கு உதவுவதே இல்லை. आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के இந்திய लिए நாட்டின் அரசியலை சுத்தப்படுத்துவதற்காக இந்த பரிவார்வாத் என்கின்ற குடும்ப நலனை நாட்டிலிருந்து விரட்டுவோம். வாருங்கள், अनिवार्यता. இது மிகவும் முக்கியம். वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं. ये நான் मनस्थिति இந்த வேலைக்கு தகுதியானவன் இருந்தாலும் என்னுடைய உறவினர் எவரும் உயர் பதவிகளில் இல்லாததால் என்னால் அந்த இடத்தை அடைய முடியவில்லை என்று அனைவரும் நினைக்கத் தொடங்கிவிடுவர். मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं. இந்த குடும்ப நலனை எதிர்த்து போராடுவதில் நான் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை வேண்டுகிறேன். संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं இது मैं. ஜனநாயகத்தின் கடமை என்று நான் நினைக்கிறேன். அரசியல் बात की ताकत சட்டத்தின் கடமை என நான் நினைக்கிறேன். अवसर चाहता हूं. हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी. ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते. लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे. जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था. लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई,
योग्यता के आधार पर விளையாட்டுத் துறையிலே கூட இன்று அடைந்துள்ள மாற்றங்களை நாம் பார்க்கிறோம். से खेल के मैदान में உறவினர்கள் மட்டுமே பெரிய உலக அளவு விளையாட்டுகளில் கலந்து கொள்ள முடியும் என்ற நிலைமை மாறி खेल के मैदान में புதிய வெளிப்படைத்தன்மை இப்போது வந்திருக்கிறது. भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है. இப்போது உலக அளவு விளையாட்டுகளில் பாரதம் பதக்கங்களை பெறுகிறது. ये भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है. இந்த குடும்ப நலன் பாய் பதீஜா வாதம் நம்மிடந்து அகற்றப்பட வேண்டும். चुनौतियां बहुत है, சவால்கள் அதிகம். अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है. இந்த நாட்டின் எதிரே கோடிக்கணக்கான சவால்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு தீர்வுகளும் இருக்கின்றன. निर्धारित लक्ष्य के साथ 120 கோடி மக்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை நோக்கி देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, ஒரு हिंदुस्तान அடி 130 करोड़ எடுத்து வைத்தால் நாடு इस सामर्थ्य को இலக்கை लेकर के நிச்சயம் अடையும். हमने आगे बढ़ना है. इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है. एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी. तभी 75 साल तक देश को यहाँ வருகின்ற 25 ஆண்டுகளில் योगदान किया, ஒவ்வொரு स्मरण हमें काम आएगा. நொடியையும் வீணாக்காமல் நாம் கடின உழைப்போடு செயல்பட்டால்தான் நம்முடைய சுதந்திரம் பெற்று தந்த அந்த தலைவர்களின் கனவை நனவாக்க முடியும். करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं. आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है. तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है. सबका இதிலே प्रयास ही परिणाम அனைவருடைய टीम ஒத்துழைப்பும் உழைப்பும் மிகவும் முக்கியம். சப்கா பிரயாஸ், அனைவரின் உழைப்பும் முக்கியம். टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगे. इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ இந்தியா ஒரு बोलिए, அணியாக வளர்ச்சி அடையும் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் விடைபெறுகிறேன். ஜெய் ஹிந்த். जय हिंद. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. बहुत बहुत धन्यवाद.